Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we are discussing sampling techniques. There are basically two types of sampling techniques. One are we call it probability sampling, and second is called non-probability sampling. Before discussing these probability and non-probability sampling techniques, we need to understand population and sample. Population basically uh, collection of objects under study is called population. For example, I want to study age of students enrolled in University of Sahiwal. In this case, my element of interest is the students of University of Sahiwal. It means University of Sahiwal is my population. In second example, basically population does not mean like population of a country. Population means basically population depends upon scope of the population, extent of the population depends upon our research question. For example, I want to know the household income of the people living in Sahiwal. In this case, my research question focus on household of Sahiwal. So in this case, households of Sahiwal will be my population. And sometimes, in order to study the phenomena, we do not have access to all the households and all the data, all the units of population. So in that case, we collect data from the available units, from the available households to investigate the problem. So in that case, those selected households, selected units of population will be called sample. Or in other words, sample is a basically subgroup of elements of population. So that's the difference between population and sample. As I told you, there is some process for sampling process. So firstly, the first thing that we need to decide is we need to decide a population, what is our population, then determine the sampling frame, mean the sampling units, that from which we will select sampling units. Then we need to select sampling techniques and we need to determine sample size. So there is a process for it. So let's come to, as I told you, that there are two types of sampling techniques: probability sampling techniques and non-probability sampling techniques. So first discuss the probability sampling techniques. Probability sampling techniques include simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, and cluster sampling. So you need to understand these sampling techniques. There is a little differences between these sampling techniques. Look into this. This is a diagram that is available. So say we have a population of 25
individuals, or in other words, there are 25 units in the population, or in other words, it is a population of 25 units. And now we want to select 5 numbers from 5 individuals from this population. We can assume that there are 25 students enrolled in say MBA second semester, and we want to select 5 students for organization of some function in the university. So and we want to randomly select those 5 students. So we have 25 students in the class, and we want to select 5 students, randomly select 5 students from that class. So what we're going to do, firstly, we will number those students from 1 to 25. So these are students we will then number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 25. So the first thing that we will do, we will number those students from 1 to 25. So what we're going to do, we will write these numbers over a piece of paper and then put into one ball in one box. Like we will write a piece of paper. So this is a box, this is a box. So this is a one piece, then second piece, then third piece. So we will put all the pieces into this box. So there are going to be 25 pieces that we will put in this box. Now we want to randomly select 5 pieces. So firstly we will pick one piece of paper, and the roll number written on that piece of paper will be selected into our sample. So say we pick one piece, and when we pick the one piece, so say its number was 3, like this one. So we will select third student, roll number 3rd from the class. Then we will pick second piece. Say when we are selected the second piece, so roll number 7 was written on say second piece of paper. Then we will select third piece, so say 9 is written over this. Fourth piece, say 16 is written, then 24. So then it means we will select these students from a list of 25 students. So this list of 25 students was our sampling frame, and we randomly select these 5 students. And these students are like, so this was say randomly selected. I have highlighted them. So these were the these was randomly selected basically. These 5 students were randomly selected from a list of 25 students. So in this way, roll number 3rd, 7, 9, 16 and 24 are part of our sample. And this sample of these 5 students was selected from a sampling frame of 25 students. It means these 5 students has been randomly selected from a class of 25 students. If we are selecting elements in this way, so it means we are using simple random sampling technique. So this is a simple random sampling technique. So I'm again going to repeat it. Firstly, what you need to do, you need to decide the sampling frame. It means you need to include all the elements of population into the sampling frame if possible. Then number them.
from 1 to say, if there are 100 units in the population, so you may number them 1 to 100. If there are 500, so number them 1 to 500. So based on the available units, so you need to number them, then randomly select the units according to the sample size. Say for example, out of 25 you want to select 10 individuals, so you want to select a sample of 10 individuals, so then you need to select 10 pieces. You need to randomly select 10 pieces from a list of 25. So in this way, those 10 selected pieces will be part of our sample. So this is like simple random sampling technique. Then the next technique is stratified random sampling. In stratified random sampling, what you need to do, आपको क्या करना चाहिए बेसिकली इसमें, आपने सबसे पहले इनको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सैंपल साइज कितना होगा. सैंपल साइज बेसिकली पॉपुलेशन साइज कितना है और सैंपल साइज कितना है. जब आपको ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो फिर आप ये देख सकते हो कि आपका इंटरवल कितना होगा. और वो इंटरवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, by dividing the population size. For example, there are 1000 elements in the population और आप sample size 1000 का लेना चाहते हैं, तो what you need to do, you need to divide 1000 by population size by the sample size. तो 100,000 को डिवाइड करेंगे जब 1000 से, तो आपके पास जो इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, 100 का आ जाएगा. So you will have a interval of 100. अब उस 100 को क्या करेंगे आप, तो इस तरह आप उन नंबर्स को लिख लोगे जो भी है. फर्स्ट 100 लिस्ट बना लोगे, 1 2 3 4 100, पहले 100 की लिस्ट इस तरीके से बना लोगे. देन सेकेंड यानी कि 101 से लेके 200 तक, दूसरे 200 की लिस्ट इस तरह बना लोगे आप 200 तक. देन इसी तरह थर्ड की एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन तीसरा. अब क्या करोगे, ये पहला आपका ग्रुप है और इंटरवल आपने जितना का इंटरवल रखना है उतने का ग्रुप बना लेना है. और अगर इंटरवल आपका 100 का है तो आप 100 का ग्रुप बना लो. अगर इंटरवल आपका 50 का है तो 50 का ग्रुप बना लो. एंड इफ यू हैव इंटरवल ऑफ 10 तो फिर 10 का ग्रुप बना लो. तो जितने का इंटरवल हो उतने यूनिट्स का आपने ग्रुप बनाते चले जाना है. तो हमारे पास इस जो मैंने एग्जांपल दी उसमें 100 का से हमारे पास इंटरवल था, तो हमने 100 यूनिट्स का पहला ग्रुप बना लिया. देन 101 टू 200 तक हमने सेकंड ग्रुप, देन 201 से 300 तक थर्ड ग्रुप, देन इस तरह फोर्थ फिफ्थ तरह चलते चले जाएंगे. अब ये जो पहला ग्रुप है, ये जो अभी जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूं, आपने क्या करना है कि इसको इसमें से रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करना है. से वो नंबर सेलेक्ट हुआ आपका 2 सेलेक्ट हो गया, ये वाला 2 सेलेक्ट हो गया, तो आपका ये नंबर जो है रैंडमली जो सिलेक्ट किया तो ये 2 आ गया. अब 2 ये फिर आपका इंटरवल जो है वो 100 का है, तो 2 + 100, तो अगला यूनिट जो आएगा वो 10, ये वाला आ जाएगा 2. अगला फिर 20 2 आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा. फिर अगला 302 आ जाएगा, फिर 402, देन 502, 602, 70, इस तरह आप चलते चले जाओगे जब तक कि आपने जितना सैंपल साइज लेना है उतना आप उसमें सेलेक्ट नहीं कर लेते. तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि इंटरवल कितना होगा. सॉरी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि पॉपुलेशन यूनिट कितने हैं, पॉपुलेशन साइज कितना.
फिर उसमें से सैंपल साइज कितने का लेना चाहते हो, तो आप क्या करो कि यू नीड टू डिवाइड द पॉपुलेशन साइज बाय द सैंपल साइज। तो इस तरीके से आपके पास इंटरवल आ जाएगा जिसे हम आई कहते हैं। इंटरवल 10 का आ गया तो आप 10 का ग्रुप बना लो। अगर इंटरवल 20 का है तो देन मेक अ ग्रुप ऑफ 20, पहला 20, फिर अगला 20, देन थर्ड 20, देन फोर्थ 20, इस तरीके से आप चलते चले जाओगे। फिर वो जो आपने इंटरवल एक बनाया है फर्स्ट 20 का, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करोगे एक नंबर। अब देखें, अब मैं आपको ये मिसाल एग्जांपल देता हूं, ये जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। मेरे पास पॉपुलेशन साइज थी 25, ये मेरा पॉपुलेशन है टोटल 25, 1 to 25। मैं इसमें से सैंपल साइज लेना चाहता था 5 का। तो व्हाट आई गोना बी डूइंग, तो मैं तो टोटल पॉपुलेशन जो n था वो था हमारे पास कितना 25, और सैंपल साइज जो लेना चाहते थे वो कितने का लेना चाहते थे, दैट वाज 5 का। सैंपल साइज वाज 5। तो हम पहले इसको डिवाइड करें ना, डिवाइड करेंगे तो 25/5, तो हमारे पास जो पहला आई आ जाएगा हमारे पास वो कितने का आ जाएगा, इंटरवल गोना बी 5। अब पहले हम 5 नंबरों का ये एक पहला ग्रुप बना लेंगे, देन नेक्स्ट 6 से 10 तक सेकंड ग्रुप, देन 11 से 15 तक हमारा थर्ड ग्रुप, इसी तरीके से हम 25 तक टोटल ग्रुप बना लेंगे। अब आप ये देख लें इसमें, तो पहला ग्रुप मैंने 5 का बना लिया, 1 to 5 का, सेकंड 6 से 10 का बना लिया, देन 11 से 15 का, देन 16 से 20 का, देन 21 से 25। तो मैं 5 ही लोग सिलेक्ट करना चाहता था, सैंपल साइज 5 का लेना चाहता था। पहले मेरे पास पॉपुलेशन 25 की थी, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 सैंपल साइज से मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास 5 का इंटरवल आया और मैंने 5 ग्रुप बना लिए। सो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 5 नंबर थे, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किए। अब इन 5 नंबरों में से मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा एक नंबर। उसी तरह रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, आई विल राइट दीज 5 नंबर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक बॉक्स में डालूंगा और एक नंबर रैंडमली उससे पिक कर लूंगा। सेम वो जो रैंडमली नंबर मैंने सेलेक्ट किया दैट इज 2, तो इट्स मीन पहले ग्रुप में से मैं 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इंटरवल मेरा कितने का है, 5 का, तो 2 + 5 में उसमें ऐड करूंगा, तो इट मींस नेक्स्ट मेरा नंबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पहले मेरे पास क्या था 2, अब फिर 7 आ गया, तो 7 में फिर इंटरवल मेरा कितने का है, 5 का। 5 में 7 में 5 ऐड करूंगा तो मेरा नेक्स्ट जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। फिर 12 में 5 एंटर करूंगा तो मेरे पास 17 आ जाएगा, देन 22। इट मींस मेरे सैंपल में रोल नंबर 2, रोल नंबर 7, 12, 17 एंड 22 मेरे उसमें सैंपल में आ जाएगा। तो इस तरह मैंने ये जो सैंपल सेलेक्ट किया है ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक मैंने यूज की है। ये जो टेक्निक है दैट आई यूज टू सिलेक्ट द सैंपल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। और जो सैंपल इस मेथड से आया है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। तो इस तरह की टेक्निक मोस्टली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हाउस होल्ड का डेटा लेना है, तो हाउस होल्ड में हम बजाय कि हम रैंडमली सेलेक्ट करें किसी कॉलोनी में से लोग, तो पता चले जिस जगह से हमने रैंडमली सेलेक्ट किया वो सारे अमीर लोग शामिल हो जाएं, या समटाइम ऐसे लोग जो लोअर इनकम लेवल रखते हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि कॉलोनी के सारे लोगों को कवर किया जाए, तो फिर हम उस केस में सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिस्टमैटिक सैंपलिंग समझ आ गई होगी। अच्छा, समटाइम हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, तो वो उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि क्या करना है। अच्छा, अब हमारे पास पॉपुलेशन ऐसे हम ये जानना चाहते हैं कि हम मेल और फीमेल के प्रॉब्लम जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में। अब एक ऑप्शन है कि हम रैंडमली कोई 200 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें और उनसे पूछ लें भी आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम उनसे
डिसाइड कर लें कि अच्छा स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हो सकता है सारे मेल स्टूडेंट ही 200 के 200 मेल स्टूडेंट आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 200 फीमेल स्टूडेंट्स भी आ जाए। तो मेल और फीमेल के प्रॉब्लम स्लाइटली डिफरेंट है। तो इस केस में इस प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए हम इसके ग्रुप बना लेते हैं। उसमें हम ये मेल का ग्रुप और फीमेल का ग्रुप, तमाम मेल तमाम फीमेल। अब यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के हमने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक मेल है दूसरा फीमेल। अब इसको हम उसकी लैंग्वेज में, सैम्पलिंग लैंग्वेज में, ये मेल स्ट्रेटा है और फीमेल स्ट्रेटा है। तो हमने पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट हमने पॉपुलेशन के दो स्ट्रेटा बना लिए, एक मेल स्ट्रेटा एक फीमेल स्ट्रेटा। अब से हमारे पास यूनिवर्सिटी में से 200 मेल है और से 300 फीमेल है। तो टोटल पॉपुलेशन कितने की होगी? 500 की। सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ 500, उनमें से 200 मेल है एंड 300 फीमेल है। तो हमारे पास जो फीमेल स्टेटा है दैट इज द स्टूडेंट ऑफ 300 एंड मेल स्टेटा आर स्टूडेंट ऑफ 200। अब हम इसमें से पॉपुलेशन लेना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम मेल स्टेटा में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट लेने हैं वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह फीमेल स्टेटा में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। जो मेल में से लेंगे वो N1 कर लें, N1, और जो फीमेल से लेंगे उसको N2 कर लें। कि एक सैंपल हम मेल से ले लेंगे, एक सैंपल हम फीमेल से ले लेंगे, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा सैंपल साइज बन जाएगा। अब से हम स्टूडेंट लेना चाहते हैं 50 स्टूडेंट। हम सैंपल साइज जो लेना चाहते हैं ना, सैंपल वो कितने का लेना चाहते हैं? हम ना 50 स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, सैंपल ऑफ 50। इसका मतलब है अगर हमने 50 का सैंपल लेना है तो इट मींस के 300 फीमेल है एंड 200 मेल है। तो इट्स मीन मेल में से हम कितने का सैंपल लेंगे? मेल में से हम 20 का लेंगे फिर, और फीमेल क्योंकि 300 है तो उसी ग्रुप के हिसाब से, स्टेटा के हिसाब से हम 30 का सैंपल फीमेल का ले लेंगे, फीमेल के ग्रुप में से। अब दोनों को ऐड करें 20 मेल एंड 30 फीमेल, तो हमारे पास टोटल सैंपल कितना आ जाएगा? 50 का। और टोटल हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? वो 500 की है हमारे पास। तो इस तरह हमारे 500 में से हम 50 सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से अब ये 20 हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब इसी तरह मेल स्टूडेंट 200 है तो हम इनको नंबर करेंगे 1 से 200 तक, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे अप टू 200 तक। इस तरह लिख लेंगे। इन 200 को हम पीस ऑफ पेपर पे नाम लिखें इनके, और उनमें से 20 रैंडमली सेलेक्ट कर लें। तो वो जो 20 सेलेक्ट होंगे वो हमारे रैंडमली सेलेक्टेड मेल स्टूडेंट होंगे। इसी तरह फीमेल के 300 की लिस्ट है तो 300 की लिस्ट हम क्रिएट कर लें, उनमें से 30 हम रैंडमली सेलेक्ट कर लें। तो देन उन जो 30 हमने फीमेल सेलेक्ट की हैं और 20 जो मेल सेलेक्ट किए हैं उनसे हम ओपिनियन लेके हम डिसाइड कर लें कि अच्छा हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस तरह को कोई प्रोसेस यूज कर रहे हैं सैंपल को सिलेक्ट करने का, तो ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमारे पास से 500 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में जो पढ़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, और हमें पता है कि मेल के प्रॉब्लम डिफरेंट है फ्रॉम फीमेल स्टूडेंट से। तो हम क्या करेंगे? हम पहले पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में। एक मेल ग्रुप बना लेंगे, सेकंड फीमेल होंगे। फीमेल ग्रुप, वो जो मेल ग्रुप है उसको हम मेल स्टेटा कहेंगे, और जो फीमेल है उसको हम फीमेल स्टेटा कह लेंगे। तो से हमारे पास 200 मेल हैं, 300 फीमेल हैं, तो मेल स्टेटा कंसिस्ट ऑफ 200 स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टेटा कंसिस्ट ऑफ 300 स्टूडेंट्स। और हम 50 का सैंपल लेना चाहते हैं, तो क्योंकि फीमेल स्टेटा 300 का है और मेल स्टेटा 200 का है, तो इसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मेल स्टेटा 200 का तो 200 में से हम 20 सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे, और फीमेल स्टेटा 300 का है तो 300 में से हम 30 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम, और ये जो 20 और 30 स्टूडेंट्स हैं ये हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तमाम
इस ट्वेटा से। तो इट मीन्स, तो ये जो हमारे पास सैंपल आएगा N1 20 का और N2 30 का, इसको हम ऐड कर लें तो हमारे पास सैंपल जो बन जाएगा वो 50 का आ जाएगा। इस तरह से हमने 50 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए टोटल 500 स्टूडेंट से थ्रू स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। तो ये जो और ये जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और ये जो सैंपल इस मेथड से हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और टेक्निक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। अच्छा, क्लस्टर में थोड़ा सा ना डिफरेंस है इस सिस्टमैटिक। कुछ बच्चे जो है ना वो अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल में और क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है सिस्टमैटिक में और स्ट्रैटिफाइड में और क्लस्टर सैंपलिंग। अब अज्यूम कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों की हाउस होल्ड इनकम जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों की या पाकिस्तान के शहरियों के प्रॉब्लम जानना चाहते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के शहरियों के कौन से प्रॉब्लम्स हैं। अब हम उनसे डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं कि अच्छा पाकपतन डिस्ट्रिक्ट है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, पुकारा डिस्ट्रिक्ट है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इसी तरह बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट भी, जितने भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम ले लेते हैं। अब ये हमारे पास क्लस्टर है, 1 क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4, देन 5, देन 6, इसी तरह तमाम सिटीज जितने भी हैं वो हमारे क्लस्टर बन जाएंगे। अब शहरियों के तकरीबन मोर और लेस प्रॉब्लम सेम ही है पाकिस्तान में या पंजाब में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन क्लस्टर जितने हम बनाए हैं इन क्लस्टर में से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे 1 या 2 क्लस्टर। वो क्लस्टर हमारे पास हो सकता है कि 3rd सिटी आ जाए और हो सकता है इधर से 5th सिटी आ जाए। तो जो भी सिटीज हमारे पास आ जाएंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले तमाम क्लस्टर में पहले हम अपनी पॉपुलेशन के क्लस्टर बनाएंगे, उन क्लस्टर में से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे 1 या 2 क्लस्टर, जितने भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उन 2 को सेलेक्ट कर लें, 2 क्लस्टर्स को। फिर हर क्लस्टर में से या तो उस क्लस्टर की तमाम जितने भी उसमें यूनिट्स हैं, पूरी पॉपुलेशन है उस क्लस्टर की, उसको शामिल कर लें सैंपल में, या उसमें से भी फर्दर आप सैंपलिंग कोई टेक्निक यूज करके उसमें से भी जितने आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको मैं आपको इस फिगर से भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, सबसे पहले पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करें, देन फिर उन क्लस्टर में से रैंडमली सेलेक्ट करें 1 या 2 क्लस्टर, जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उन 2 क्लस्टर में से फिर एक ये है कि आप जितने भी उन 2 क्लस्टर जो आपने सेलेक्ट किए उनके जितने भी यूनिट्स हैं उनको सैंपल कंसीडर कर ले और उनसे डेटा इकट्ठा कर लें। या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होगी कि हर क्लस्टर में से फिर रैंडम सैंपलिंग यूज करके आप हर उस क्लस्टर में से अपने डेटा इकट्ठा कर लें जितने भी। इसके मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं। से हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो पंजाब में पढ़ रहे हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स है, ये हमारा क्वेश्चन। अब इट मींस कि तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं पंजाब की वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी क्लस्टर होंगी। तो पहली यूनिवर्सिटी, सेकंड यूनिवर्सिटी, थर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ यूनिवर्सिटी, तो हम तमाम यूनिवर्सिटीज पंजाब की वो हमारी क्या होंगी, वो हमारे क्लस्टर हो जाएंगे तमाम यूनिवर्सिटीज। ये अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये 10-20 यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब की। ये जो सारे मैंने ग्रुप्स बना लिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब की। अब से हमने रैंडमली सेलेक्ट की तो पता चला इन क्लस्टर में से हमने जब सेलेक्ट की तो पता चला हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल आ गई है और पंजाब यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट कर ली। जब हमने रैंडमली 2 सेलेक्ट किए क्लस्टर,
तो और इन क्लस्टर को भी कैसे सिलेक्ट करें, इन तमाम क्लस्टर्स के नाम आप पीस ऑफ पेपर पे लिखें और उनको एक बॉक्स में डालें, देन 2 पीसेस को रैंडमली पिक कर लें। तो वो जो हमने पहला पीस निकाला तो उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का नाम था, सेकंड जो हमने पीस निकाला उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम। अब हमने से 300 का स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो आप यूं कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से 150 सिलेक्ट कर लें, रैंडमली सिलेक्ट करें ना आप, स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में काफी सारे हैं, तो रैंडमली 150 इससे सिलेक्ट कर लें, 150 पंजाब यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट कर लें। अब आपने इसमें क्या किया कि अब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के तमाम स्टूडेंट्स को नहीं लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को नहीं लिया, आपने बल्कि रैंडमली 150 स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी से ले लिया और 150 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से ले लिया। अब इस तरीके से आपने क्या किया, ये बेसिकली क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग आपने यूज की है डेटा को कलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट से। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। पहले हमने पॉपुलेशन के क्लस्टर बनाए और इस केस में ये जो मैंने एग्जांपल दी थी कि हम पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स का हम प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट वी डिड, बेसिकली वी डिवाइडेड द क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब। फिर उन पंजाब की यूनिवर्सिटीज में से हमने रैंडमली 2 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया, फिर उन वो हमारे 2 क्लस्टर हैं, तो उनमें से एक क्लस्टर जो हमने सेलेक्ट किया दैट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और सेकंड क्लस्टर था पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर हमने हर क्लस्टर में से रैंडमली 150 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, तो इस तरह हमारे पास 300 का सैंपल आ गया, 150 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल एंड 150 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हमारे पास ये सैंपल जो आया है, ये क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से हमने ये सैंपल 300 का सैंपल को सिलेक्ट किया। तो आई होप को आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। तो लाइक दीज आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो इन फैक्ट हमने जो इस लेसन में अंडरस्टैंड किया है कि 4 तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। और हर सैम्पलिंग टेक्निक का अपने यूजेज हैं, अपनी इसकी सिग्निफिकेंस है, अपनी इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये कॉन्टेक्स्ट पे हमारे रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। तो इस तरह की वीडियोस को, रेलेवेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज आप इसको ना सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे।